ایک سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کو آج کے کلام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہے، ہم اس جگہ پر اس صفحے ماتم پر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ صفحے ماتم پر جمع ہونے کا کیا مقصد ہے، کیا پرپس ہے، کس وجہ سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خاندان کی تسلی کے لیے۔ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر آج ہم لوگوں نے سیکھنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جب بھی آپ لوگ کسی بھی فوتگی پہ جاتے ہیں، کسی بھی غمزدہ خاندان کے کسی بھی افراد سے ملتے ہیں، تو وہی کرنا ہے جو بائبل کہتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو بائبل کہتی ہے۔ اچھا توجہ دیجئے گا، یہ بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب خداوند آپ لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اگر توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کلام خدا کو نہیں سنا تو پھر وہ ساری باتیں جو آج خداوند کا پاک روح آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہے آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تو ایک فارمیلٹی کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، ملنا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن مین مقصد یہاں پر ایک تو گھر والوں کو تسلی دینا اور دوسرا خداوند کے کلام کو سننا۔ دو ہی مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کی عبادت کے اندر شامل ہونے کے۔ پہلا، جو غمزدہ خاندان ہے ان کو تسلی دی جائے، اور دوسرا جس مقصد کے لیے آئے ہیں یعنی کہ خداوند کا کلام، اس کو دھیان کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ کتنے دنوں کا ہے؟ تھوڑے دنوں کا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے 70 برس قوت ہو تو 80 برس، آخر نو مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے، پکی ہے، اور ہم شروع سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک دن اس جہان فانی سے کوچ کر کے چلے جانا ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، چلے جانا ہے، کیونکہ موت کا مطلب ہی جدائی ہے، منتقل ہو جانا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا۔ اور ان ساری باتوں کا ہم سب کو پتہ ہے۔ آج اگر ہم لوگ جو بائبل مزید آپ لوگوں کو آج سکھانا چاہتی ہے اس کو نہیں سن پائے دھیان کے ساتھ، تو میں پھر کہوں گا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ آئیے ایک ریفرنس پڑھتے ہیں، بائبل میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اور پھر مزید اسی طرح سے سیکھنا جاری رکھیں گے۔ ہم نکالیں گے، پہلا تسالونیکیوں کا خط ہے، اس کے 4 باب کی آخری آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ کلام خدا کے اندر یوں لکھا ہے، بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب اونچی آواز میں کہیں گے آمین۔ آمین۔ ابھی ہم لوگوں نے بائبل میں سے اس آیت کو پڑھا ہے کہ بس ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل کہتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم غمزدہ خاندان کو، ان کے عزیز و اقارب کو تسلی دے سکتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جو ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، وہ کیا ہوگا، 1 گھنٹے کی، 2 دن کی، 10 دن کی وہ تسلی ختم ہو جاتی ہے جو ہماری باتوں سے ہم تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر سے اگر آپ بائبل کی تعلیم یعنی کہ بائبل کی ورسز حوالوں کے ساتھ تسلی دیں گے تو وہ تسلی ابدی تسلی ہوگی، اور اس سے خاندان عزیز جو ہیں وہ تسلی پائیں گی۔ اور یہی چیز آج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ بائبل کہتی ہے بس ان باتوں سے، کن باتوں سے؟ ان باتوں سے جو اس کے اندر لکھی ہیں، ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم غمزدہ خاندان سے ملتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ علم نہیں ہوتا۔ بائبل کا علم ہوگا
तो ही इन बातों से तसल्ली देंगे ना। फिर हम क्या करते हैं, हम इधर उधर की बातें पकड़ते हैं, उनके पास को पकड़ते हैं, पास्ट को, माजी को पकड़ते हैं, उनके फ्यूचर की बातों को पकड़ते हैं, कहते हैं बहुत चंगी सी, यही बातें होती है ना। फिर उसकी कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं, और जब आप पुरानी बातों को उसके हस्बैंड के साथ, उसके बच्चों के साथ दोबारा से शेयर करते हैं, तो आप उसके गम को कम नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप जब पिछली इधर उधर की दुनियावी बातों को छेड़ते हैं, तो फिर से क्या होता है, उनके वो जख्म जो है वो हरे होते हैं, और फिर वो मजीद रोना शुरू कर देते हैं। जबकि बाइबल कहती है आपकी बातें जो हैं, आपकी तसल्ली भरी बातें जो हैं, वो इसमें से होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, मसला ये है कि हमें इसके बारे में इल्म नहीं होता कि हम बाइबल में से तसल्ली कैसे दें, हम बाइबल में से तसल्ली कैसे दें। क्योंकि बाइबल में से तसल्ली देने के लिए हमें बाइबल को जानना होगा, बाइबल को समझना होगा कि बाइबल किस तरह से तसल्ली की बातें करती है। हालेलुया, बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप इसी चैप्टर की, इसी बाब की 13वीं आयत को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। वहां पे लिखा है, ए भाइयों, ए भाइयों, ए बहनों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। किन की मानिद? औरों की मानिद, औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। यहाँ पर खुदावंद का बंदा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि हम अगर अपने आप को मसीही कहते हैं, हम कहते हैं मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दे दी, मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान जो है वो सलीब पर दे दी और मुझे खरीद लिया, और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और प्रॉपर तरीके से मैं खुदावंद यीशु मसीह में एक मसीही जिंदगी बसर कर रहा हूं। तो फिर बाइबल कहती है फिर तुमने गम नहीं करना। मसीही जो है फिर वो गम नहीं करेंगे कि हमारी बहन जो है वो कहाँ गई, जबकि हमें पता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और जो सो जाते हैं उनके पास जी उठने की उम्मीद है। और यही बाइबल कहती है जब तुम मिलते हो तो इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दो। उन घर वालों को कहो कि मेरी बहन, मेरे भाई, परेशान नहीं होना। ये जो आपकी बीवी, आपकी मामा जो फौत हो चुकी हैं, इस जहान में पानी से कूच कर चुकी हैं, वो मसीह में थी, वो एक मसीही थी, और मसीहियों के लिए ये उम्मीद है, मसीहियों के लिए ये उम्मीद है कि वो फिर से उठेंगे, फिर से उठेंगे, और ना सिर्फ उठेंगे बल्कि बाइबल के अंदर लिखा है वो हवा में उड़ेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर आप इसकी 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। और फिर लिखा है, बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो कौन सी बातें हैं? बातें ये हैं कि बाइबल कहती है कि एक मसीही को गम नहीं करना, खुदावंद यीशु मसीह में तसल्ली पानी है, क्योंकि तसल्ली इत्मीनान का सरचश्मा मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यहोवा एलोहीम एदोनाई का लख्ते जिगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और अगर हम उसके मानने वाले हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह में तसल्ली पाएंगे। तो बाइबल कहती है गम नहीं करना,
बल्कि तसल्ली देनी है कि हम ना सिर्फ उठेंगे बल्कि उड़ेंगे और इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बड़ी सीखने वाली है कि ये सोए हुए लोग कौन है? एक होता है मरे हुए और एक होता है सोए हुए। हम बड़े फख्र से कहते हैं मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। तो यीशु मसीह मरे हुए लोगों में शामिल है या फिर सोए हुए यानी कि जिंदा लोगों में? जिंदा लोगों में शामिल हैं। वो आज भी बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। जब हम दुआ करते हैं वो हमारी दुआ को सुनते हैं और फिर शफायती तौर पर वो बाप से बात करते हैं और वो हमारी शफायत करते हैं, हमारी शफायत करते हैं। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत मेथड आप लोगों को आज सिखाना चाहता हूं। जब आप किसी गमजदा खानदान से मिलते हैं या उसके मेंबर से मिलते हैं, आपने एक काम करना है। ये मुझे नहीं लगता इससे पहले आप लोगों ने ये मेथड कभी सीखा होगा। आपने क्या करना है, हस्बे मामूल उसको हक करना है, मिलना है और अफसोस का इजहार किया। उसके बाद उसे कहना मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। आपने उसके हाथों को पकड़ना है और सिंपल सी 1 मिनट की 2 मिनट की तसल्ली से भरी हुई दुआ करनी। कर सकते हैं? ये मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसान है ना, क्योंकि ये बाइबल कहती है बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो क्या करना है, जब मिलना है तो तसल्ली के लिए उनको पकड़ना है। आप चाहे उनके गले लग के रो रहे हैं, उनको तसल्ली दे, उनको कहे मेरी बहन मेरे भाई 1 मिनट के लिए खामोश हो, गले लगे रहे, उनको कहे मैं अपनी छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। आपके दुआ करते करते मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि बाइबल खुदा का कलाम जो है ये कभी भी बेतसीर नहीं लौटता, ये असर करता है। आप जब दुआ करेंगे आपके दुआ करते करते वो तसल्ली पाएंगे। वो क्या करेंगे? तसल्ली पाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पर अपने आने का हक जो है वो पूरा करेंगे, मकसद को पूरा करेंगे। बातें आ रही हैं समझ में? मुश्किल तो नहीं है। कुछ बहनें जो हैं वो देख नहीं रही मेरी तरफ। अगर आप मेरी तरफ देखेंगी नहीं समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक खादम 2 तरह से बात करता है, एक तो जुबान से और दूसरा अपनी बॉडी लैंग्वेज से। एक जुबान से और दूसरा बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं इशारे। हम इशारों से, आधा कलाम तो इशारों से सिखाते हैं। और गला आ रही है समझ? इसलिए कोशिश करनी है जहां भी हैं आप बड़ी मीटिंग में हैं, क्रूसेड, कन्वेंशन, सेमिनार में हैं, आप घर में कोई इबादत रखवाई है या फिर आप अपने चर्च के अंदर हैं, अगर सीखना चाहते हैं, बाइबल को सीख कर याद रखना चाहते हैं, तो एक काम करना है, जो बंदा बोल रहा है उसकी तरफ प्रॉपर तरीके से देखते रहो आखिर तक, फिर आपको चीजें याद रहेंगी। तो भी मैंने लास्ट बात क्या की थी, जब गले मिलना है तो क्या करना है? तसल्ली की दुआ करनी है। दुआ भावें आउंदी है तो भावें नहीं आउंदी, असी सिंपली कह सकने अखा बंद करो मैं तुहाडी दुआ करनी है, ते असी ये तो कह सकने खुदावन यीशु मसीह दे विच तसल्ली पाओ, इन्ना तो कह सकने हैं ना। मतलब अगर नहीं आती तो इतना तो कह ही सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हर बंदा फर्दन आके तसल्ली देगा तो वो घर वाले तसल्ली पाएंगे, वो तसल्ली पाएंगे। तो अर्ज कर रहा था, सोए हुए और मरे हुए लोग जो है ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अब सोए हुए लोग कौन हैं? बाइबल की रोशनी में अगर हम इस बात को सीखें तो सोए हुए वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हैं। क्या करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं हम अगर मसीही घराने में पैदा हुए हैं तो हम मसीही हैं, लेकिन बाइबल किसी और तरह से एक मसीही को पेश करती है। बाइबल कहती है जो मेरे बेटे को, यानी कि खुदावंद कहते हैं जो मेरे बेटे पर ईमान लाएगा, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा, बपतिस्मा लेगा तो वो निजात पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील 16वें बाब की 24वीं आयत के अंदर, उसने कहा अगर तुम मसीही कहलाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग कहें कि ये मसीही है, तो फिर अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। और लूका की अंजील 9वें बाब में वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक
नहीं हो। अच्छा, इस कंफ्यूजन को आज जरूर दूर करके जाइएगा कि आप कहीं ये ना समझिएगा कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूं और मेरी जिंदगी के अंदर दूर दूर तक मसीह नजर नहीं आ रहा, मसीह की बातें नजर नहीं आ रही, कलाम नजर नहीं आ रहा, मेरा पहनावा, मेरा उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी मसीह के मुताबिक नहीं है। और अगर आप कहें कि मैं मसीह में मरूंगा नहीं बल्कि सोऊंगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में वही सोते हैं जो मसीह में जीते हैं, जो मसीह में जीते हैं, जो मसीह में जिएंगे वही मसीह में मरेंगे और उन्हीं के पास वो उम्मीद है कि वो उड़ेंगे और इस्तकबाल करेंगे। इससे पहले जो इस दुनिया से चले गए, आपको पता है जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ा खूबसूरत हवाला है जो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह में जिंदगी बसर करते हुए इस दुनिया से चले गए ना। आपको पता है जब बाइबल के अंदर हम छठे बाब को पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब उसके छठे बाब को जब आप पढ़े तो वहां पर वो रूहें पुकार पुकार कर कहती हैं मेरा इंसाफ कर। ये कौन सी रूहें हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह में जिया और खुदावन यीशु मसीह में सो गए हैं? वो कहती हैं मेरा इंसाफ कर। और आगे से खुदावन यीशु मसीह कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, अभी और भी बाकी हैं जिन्होंने मुझ में जिंदगी बसर करके अपनी गर्दनें उतरवानी है और अपने आप को कुर्बान कर देना है, उनको भी आ लेने दो, वक्त पूरा हो लेने दो, गिनती पूरी हो लेने दो। और जब वो आ जाएंगे फिर आपका भी इंसाफ होगा। और बाइबल कहती है कि तख्त लगेंगे, लाइनें लग जाएंगी और फिर जो है वहां पर हर बशर का हिसाब होगा। और अदालत पे यकीन रखते हो कि नहीं? रखते हैं, अदालत होगी। बाइबल के अंदर लिखा है ना कि अदालत होगी। अगर खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं तो फिर बाइबल के अंदर लिखा है कि उसका जीना जो है वो क़यामत है और क़यामत होगी। क़यामत पर जो है वो तख्त लगेंगे और जिन्होंने यीशु के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की होगी, बाइबल के अंदर लिखा है उनसे कहा जाएगा इनको फेंको उस जगह पर जहां रोना है और दांतों का पीसना है। और बाइबल कहती है वहां पर एक ऐसा कीड़ा जो कभी नहीं मरता, और ना असी मरना है तो ना उस कीड़े ने मरना है। उनका काम इको ये वड्डेगा, तड़फांगे तो अमीर आदमी की तरह कहांगे सानू मौका दे दे, मेरे कुछ होर भरा भी नहीं सी उन्हां को चले जाइए, उन्हां नूं तो दसीए इत्थे की है। इसलिए कितनी खुशी की गल है कि साडे कोल मौका है, जिंदगी है, असी हयात हाँ ते साडे कोल जिहड़ा ना खुदा दा काम करन दा मौका है। असी उनदे लई जिंदगी बसर कर सकने आ, उनदे कम्मां नूं कर सकने आ। वाइस नबी दी किताब जो पढ़ने आ ते उनदे 9वें बाब दी 10वीं आयत दे विच बड़ी खूबसूरत गल लिखी है। आखिरी हवाला है, उस तो बाद मैं बंद करन लगा, बड़ा ध्यान नाल सुन लेना। लिखा है जो काम तेरा हाथ करने को पाए उससे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। 4 काम वहां यहाँ पर बताता है। कहता है जिथे तुसी जाना है ना मरण तो बाद, ना तो उत्थे तुसी कोई प्लानिंग कर सकते हो, ना तुसी उत्थे कोई काम कर सकते हो, ना तुहाडा उत्थे कोई इल्म काम आएगा, ना तुहाडी हिकमत काम आएगी। जिथे तुसी जाना है, इसलिए बाइबल कहती है जो कुछ करना है असी इस बदन दे विच रह के ही करना है, इस बदन दे विच रह के ही करना है। चंगा भी करना है तो बदन दे विच रह के, मंदा भी करना है तो इसे बदन दे विच रह के। तो मैं क्या सी आखिरी हवाला है, एक और हवाला सिर्फ दसना चाहना वा, पढ़ांगे नहीं। गलतियों के खाते 5वें बाब की 17वीं आयत तो पढ़ना शुरू करिया जे। उत्थे लिखिया जिस्म के काम तो जाहिर है, एक लंबी लिस्ट जे पढ़ लेना ते ओ तुहाडे जिस्म दे नाल ही जुड़े हुए ने। इसलिए अगर खुदावंद यीशु मसीह दे विच सोना चाहते हो तो फिर की करना है? बाइबल दे मुताबिक जिंदगी बसर करनी है ताकि जो वक्त आए तो असी उड्डीए तो इस्तेमाल करिए। हालेलुया। कलामे खुदा वास्ते जोरदार ताली बजाओ।